Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. We will continue exercise 9 which is on page number 142. So open your book. Okay, so we have done first two questions. So in this video we are going to do question number 3 and from question number 3 to question number 11. We have to complete this exercise. Okay, so the question number 3 is Shirin's father is 4 times as old as she is. In 18 years he will be exactly twice as old as her. Find their present ages. So first we will let Shirin's age, which is x, let Shirin's age is equal to x. Then in question में वो क्या कह रहे हैं कि Shirin's father is 4 times as old as she is. तो अगर Shirin's की एज x है तो उसके फादर की एज 4x होगी. और फिर 18 years के बाद Shirin की एज x plus 18, क्योंकि 18 years के बाद Shirin की जो प्रेजेंट एज है उसमें 18 ऐड हो जाएगा और इसी तरह उसके फादर की एज में भी 18 ऐड हो जाएगा. तो ये दोनों आफ्टर 18 years वाली एज है और ये उनकी प्रेजेंट एजेस हैं. देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट ही विल एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर. तो उसके फादर की जो एज है, शिरिन्स के फादर की एज, दैट इज 4x plus 18, वो शिरिन से ट्वाइस होगी. सो 2 and in bracket we have written Shirin's age which is x plus 18. ये वो ages हैं जो 18 years के बाद होंगी. Then you have to solve the question just like we have done in question number 2. 2x plus 18 twos are 36. Then you have to combine like terms x with x to this side and you have to bring 18 here. Then after solving we get x is equal to 9. So what was x here? It was Shirin's age. So Shirin's age is 9. तो अगर x 9 है तो 9 4s are 36. So her father's age will be 36 years. Now question number 4 is a pole x meters long is broken into two parts. One part is 3 meters long and other part is 2x minus 17 meters long. Find the original length of the pole. So first we will let the total length of the pole which is x, क्योंकि total length हमें नहीं यहाँ उन्होंने given की हुई है कि x meters long है. अब वो पोल 2 पीसेस में ब्रोक हुआ है. वन पार्ट वो कह रहे हैं कि 3 मीटर्स लॉन्ग है दूसरे पार्ट से. तो अगर लेंथ ऑफ वन पार्ट 3 मीटर है तो अदर पार्ट 2x माइनस 17 है. तो जब हम इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट जो है वो कितना मीटर, 3 मीटर लॉन्ग था. तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ x. एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x इज इक्वल टू 14. सो लेंथ ऑफ द पोल इज 14 मीटर. Now question number 5 is if a number is tripled and result is increased by 18. First you have to let the number. सबसे पहले हमने एक number let कर लिया x, increased by 5 कि उसमें 5 ज़्यादा हो रहा है लेकिन tripled है number. तो जब हम number को triple करेंगे it will be 3x, उसमें 5 increase हो जाएगा, it will become 3x plus 5. अब condition क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर number को triple करके उसमें 5 add कर दें तो result 44 होता है. So this number 3x plus 5 will be equal to 44. And after solving you will get the required number which is 13. ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ये सिंप्लीफिकेशन है जो आप लोगों ने चैप्टर 8 में भी की है और चैप्टर 9 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमने की हुई है. सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. Okay, now the question number 6 is twice a number added to half of itself equals 20. Find the numbers. सबसे पहले हम एक नंबर लेट कर लेंगे. Twice a number means 2x और half का मतलब है कि x divided by 2. So according to given condition क्या है कि twice a number added to half यानी 2x plus x by 2 और वो किसके इक्वल हो रहा है 20 के. और यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में और ये नंबर है सिंपल तो हम पहले 2 और 1 का एलसीएम लेंगे. इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x हो जाएगा एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट x is equal to 8 and which is the required number, that is 8. Okay, now this is question number 8 and I have just written the statements here. You have to solve rest of the question by yourself. इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या है 36. तो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स तो आपको पता होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं. कंसेक्यूटिव मीन्स कि जो एक साथ आते हो जैसे 2 4 6 या 4 6 8. तो हमने सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर लेट कर लिया x. स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर इज 2. सो इफ वी लेट स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर x तो बाकी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, एक x plus 2 और एक उससे नेक्स्ट x plus 4. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों का सम किसके इक्वल है 36 के. अब आपको इसको ओपन करके खुद से सॉल्व करना है और आपको x की
वैल्यू फाइंड करनी है. दैट इज योर homework. You have to do it by yourself. These are the statements. You have to write this question. Okay, now next question is Sana is senior to Mona by 18 years. After 6 years, Sana will be twice as old as her. Find Mona's present age. Okay, सबसे पहले हम मोना की एज लेट कर लेंगे which is x. क्योंकि मोना की एज हम लेट करेंगे तो हम सना की एज लिख सकेंगे कि जो मोना से सीनियर है 18 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स उससे बड़ी है. तो इट्स मीन के सना की एज क्या हो जाएगी, मोना की एज में हम 18 को प्लस कर देंगे. इट विल बी x प्लस 18. अब ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं. आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा, इन दोनों की प्रेजेंट एजेस में 6 ऐड हो जाएगा. x प्लस 6, x प्लस 18 प्लस 6. तो मोना की एज बन गई आफ्टर 6 ईयर x प्लस 6 और सना की एज बन गई x प्लस 24. अब गिवन कंडीशन क्या है कि सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना. तो ये सना की एज है, इसको हम ट्वाइस कर देंगे 2x प्लस 6 के. नाउ यू हैव टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइंड द मोना's एज. Okay, in this question Rehan buys a book and pen and pays rupees 50 for both. तो total cost जो है वो book और pen की that is rupees 50. book की cost क्या है, 8 more than twice the cost of pen. तो हम पेन की कॉस्ट लेट करते हैं, हमें नहीं पता. अगर हम वो लेट कर लेंगे उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x. अब बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x प्लस 8, क्योंकि बुक की कॉस्ट 8 टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन से. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम बुक की कॉस्ट विच इज़ 2x प्लस 8 और पेन की कॉस्ट विच इज़ x, उन दोनों को प्लस कर दें, इट विल बी इक्वल टू 50. Now you have to solve the remaining part and find its answer, the cost of book. And the last question is, in 12 years a man will be twice as old as he was 12 years ago. तो सबसे पहले तो हम उसकी present age को let करेंगे which is x. 12 years पहले उसकी एज क्या थी, x माइनस 12, क्योंकि वो 12 years पीछे चला गया तो 12 माइनस हो गया. और आफ्टर 12 years क्या होगी, x प्लस 12. अब इन दोनों एज को वो क्या कह रहे हैं कि मैन ट्वाइस होगा एज ओल्ड एज ही वॉज 12 years ago, यानी उसकी प्रेजेंट एज जो है वो उसके 12 साल की पहले वाली एज के ट्वाइस है. तो ये कंडीशन बनेगी और अब आपको इसको आगे खुद सॉल्व करना है. यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दैट मैन, मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. And you have to do all these questions in your notebook very neatly, and you also have to solve the MCQs on page number 143 on your book. Thank you. Allah Hafiz.